so shocked कि यार मतलब ऐसा भी हो रहा है आज के जमाने में. I don't know why creators have to do this. It's so sad. देख देख डैश की कॉपी कैट, देख देख ये तो सिर्फ डैश को ही कॉपी करती रहती है. Just because I am working with Mamaearth doesn't mean कि मैं उन क्रिएटर्स पे शेड थ्रो करूंगी कि नहीं वो तो बस उनके तो रिव्यूज में झोल है, कोई कॉपी कैट जैसा वर्ड यूज करके कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, क्योंकि लोग तो ऑब्वियसली क्लिक करेंगे ही ना. वो कमेंट्स तभी क्यों आते हैं जब वो यूट्यूबर अपने चैनल पे बैकग्राउंड कॉपिंग की एंड कंटेंट कॉपिंग की बातें करती हैं. Hi my lovelies, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing well, and welcome to the second episode of my series which is #raw and real. Basically this is like a honest Q&A series जो मैंने New Year's Eve पे ही start कर दी थी, but अब क्योंकि honest Q&A काफी ट्रेंड में चल रहे हैं, so मैंने सोचा कि क्यों ना मैं second episode भी इसी दौरान बनाऊं. Like let me just hop on to the trend and make the second episode. So I posted a story on my Instagram और YouTube community tab पे भी मैंने post डाली थी कि ask me anything and I will give the most honest answers. So मुझे around I think 200 questions आए थे, like बहुत सारे questions आए थे YouTube and Instagram के मिला के. So उसमें से मैंने कुछ like 15-20 questions अपने इस notebook में लिख लिए हैं. So I'm really excited to answer all your questions. But before that, let me just quickly discuss my look of the day. We haven't done that in a while. So for my eyes, मैंने अपना वही same Stay Quirky का liner लगाया हुआ है. Nothing fancy, nothing new. I love that liner. For my mascara, I've actually worn this one, which is a L'Oreal का Voluminous Lash Paradise mascara. I talked about this mascara अभी recently, and I've been really enjoying this mascara. For my cheeks, I've actually applied this blush, which is a Stay Quirky Double Date Blush Duo. And इसमें दो blushes है, एक pink है, एक coral है. So दोनों को मैंने mix करके लगाया हुआ है. It's not very extremely pigmented, but it's buildable. Now for my highlighter, I'm again wearing something from Stay Quirky. It's the Stay Quirky High and Lit Highlighter. So basically it's a stick highlighter. ये cream based highlighter है in this shade Gold Baby Gold 08. Such a cute name by the way. So मैंने इसको हल्का सा लगाया and I blended it with my fingers. It's a very beautiful highlighter. Gives that really nice natural सी sheen. Now for my lipstick, मैंने actually दो lipsticks mix करके लगाया because I'm wearing a pink baby pink top. So सबसे पहले मैंने ये वाली lipstick लगाई, which is the Darling Isabel liquid lipstick in the shade मैजिक ब्लश नंबर 13. सो ये ना काफ़ी आप कह सकते हो कि मूवी सी लाइक डार्क मूव टाइप का कलर था एंड अच्छा नहीं लग रहा था उतना ऑन इट्स ओन. तो उसके ऊपर मैंने ये वाली लिपस्टिक लगा ली, विच इज़ NY Bay लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड रेड कार्पेट ड्रीम नंबर 13. सो पहले मैंने ये लगाया, उसके ऊपर मैंने इस लिपस्टिक को ही लाइट बनाने के लिए ये वाली लगा दी एंड आई फील इट जस्ट लुक्स परफेक्ट. इस टॉप के साथ एक्चुअल में लिपस्टिक काफी अच्छे से जा रही है मेरे स्किन टोन पे एंड एट द सेम टाइम मुझे वॉश आउट भी नहीं कर रही है. यू गाइस कैन सी लाइक काफी अच्छी लग रही है. इन केस यू वांट टू चेक आउट दीज प्रोडक्ट्स, तो मैं इन सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. यू कैन एक्चुअली बाय दीज फ्रॉम purple.com राइट नाउ बिकॉज इट्स द बेस्ट टाइम टू शॉप. उनकी आई हार्ट ब्यूटी सेल चल रही है. इट स्टार्टेड फ्रॉम 29th of April एंड इट्स गोना गो टिल द 4th of May. सो आपको अप टू 50% ऑफ मिलेगा इस सेल में. एंड ये जो सारी ब्रांड्स मैंने अभी दिखाई ना, लाइक Stay Quirky, NY Bay, इन पे अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं. So on Stay Quirky and Purple Cosmetics, if you buy 2 products at MRP, you will get 2 products free. And the same offer is going on NY Bay as well. So basically you're gonna get amazing offers. L'Oreal, Lakme, Maybelline पे भी बहुत amazing offers चल रहे हैं. So yeah, make sure you check out Purple की I Heart Beauty sale. And without any further ado, let's just get started with today's video. Alright, so I'm gonna start off with the questions that you guys asked me on my Instagram. And the first one is, it's actually a funny one. Have you ever got a crush on your cousin? First of all, I know ये क्वेश्चन कहाँ से आया है. अभी कुछ टाइम पहले ये ट्रेंड चला था रिएक्टिंग टू योर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स. आई सॉ मालविका's वीडियो, आई सॉ सारा's वीडियो एंड उसमें कितने लोगों ने बोला था दैट दे हैव अ क्रश ऑन देयर कजन, दे आर इन रिलेशनशिप विद देयर कजन, दे लाइक देयर कजन. इतना कजन हो रहा था ना, एंड आई वाज सो शॉक्ड कि यार मतलब ऐसा भी हो रहा है आज के जमाने में. एंड इस क्वेश्चन का आंसर है दैट आई नेवर गॉट अ क्रश ऑन माय कजन. आई मीन इट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन दैट इट्स डिस्गस्टिंग. बिकॉज चाहे है आपका कजन लेकिन वो है आपका भाई या बहन ही ना. नाउ मेनी पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन, हाउ डिड यू स्टार्ट योर ओन ब्रांड एंड व्हाई यू लेफ्ट योर जॉब ऑफ अ कैबिन क्रू. द सिमिलर वन इज, व्हाट इज द कॉन्फिडेंस मंत्रा, लाइक हाउ यू गेट करेज टू स्टार्ट अ ब्रांड. बेस्ट विशेज एंड आई लव यू ऑलवेज. आई लव यू मोर. थैंक यू सो मच. द सिमिलर वन इज, हाउ डिड यू थिंक ऑफ शिकासा, व्हाट इंस्पायर्ड यू एंड हु इज योर पार्टनर इन शिकासा. सो मैं ये सारे क्वेश्चंस एक साथ मैंने पढ़ दिए ताकि मैं एक ही आंसर लाइक सम अप करके आंसर दे पाऊं. सो
कुछ लोग मेरे चैनल पे न्यू है, उनको ये चीज नहीं पता होगी that I've actually worked as a cabin crew for 3 years. I was in Indigo, then I switched my job from Indigo to Vistara, then Vistara to Air India, and now I'm a full-time YouTuber. So actually मुझे एक ना स्टेबिलिटी चाहिए थी अपने YouTube चैनल में, कि मतलब मैंने सोचा हुआ था कि एक स्टेबिलिटी आ जाएगी ना मेरे चैनल में, देन ओनली आई कैन थिंक ऑफ क्विटिंग माई जॉब. नाउ दैट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि वो स्टेबिलिटी अब मुझे मिल गई है मेरी मेहनत से और भगवान के आशीर्वाद से. सो विच इज वाई आई हैव लेफ्ट माई जॉब, क्योंकि मुझे दो नाव में सवार नहीं होना है, मैं एक ही चीज पे फोकस करना चाहती हूँ. एंड बिकॉज यूट्यूब इज माई पैशन, सो मैं यूट्यूब को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहती थी, विच इज वाई आई लेफ्ट माई जॉब ऑफ कैबिन क्रू एंड आई स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब फुल टाइम. एंड हाउ डिड आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस? एक्चुअली मैंने उतना ज्यादा गहराई में जाके नहीं सोचा कि बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो क्या होगा, कैसे होगा. बस मेरा मन किया एंड आई जस्ट स्टार्टेड बिकॉज आई वॉज एक्चुअली वेरी इंस्पायर्ड बाय निधि कटियार. निधि दी हु इज ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर एंड द फाउंडर ऑफ कर्व्स एंड लैशेस. तो मैं उनके व्लॉग्स देखती थी ना, वो घर का भी काम कर रही हैं, वो एंटरप्रेन्योर भी है, वो कंटेंट क्रिएटर भी है, एंड शी इज सो कंसिस्टेंट विद हर चैनल एंड एवरीथिंग. आई वाज जस्ट सो इंस्पायर्ड कि एकदम ऐसा लाइक मल्टीटास्क कैसे कर पाती है, मैनेजिंग हर किड एंड हर बिजनेस एंड हर चैनल. कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा इंस्पायर कर जाता है कोई इंसान आपको. सो इस केस में ऐसा ही हुआ कि यार वो इतने अच्छे से लाइक यू नो सब कुछ मैनेज कर सकती हैं, तो इवन आई शुड ट्राई. तो इसीलिए मैंने उनसे बात करी दैट आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन. शी गेव मी द मैन्युफैक्चरर का नंबर, शी गेव मी द आइडिया कि मैं अपने बैग्स निकालूं, एंड उन्होंने मेरे कलेक्शन का नाम डिसाइड किया. एंड मतलब इतना ज्यादा उन्होंने हेल्प किया ना, मतलब इंस्पायर भी उनसे हुई एंड देन हेल्प भी मैंने उनसे ही बहुत लिया है. सो या दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस कि मैंने क्यों अपना ब्रांड स्टार्ट किया. एंड देन फिर बाद में मुझे ये भी था कि चलो थोड़ा और समझ आ जाएगा कि ब्रांड रन करना कैसा होता है, एंड फिर एक साइड बिजनेस भी आ जाएगा आपका, क्योंकि यार यूट्यूब इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल यू नो. एंड माई पार्टनर इन शिकासा इज अभिषेक. आई रियली वॉन्टेड हिम टू बी द मेन ओनर ऑफ शिकासा, बट देन ही वाज लाइक नो नो नो, इट्स योर ब्रांड, यू विल बी द ओनर. सो ही बिकेम द को ओनर ऑफ शिकासा एंड वो सारा बैकएंड संभालता है शिकासा का. द नेक्स्ट वन इज, आर यू गोना बी सेलिंग द मिंट ग्रीन बैग इन योर प्लीट ऑफ फ्लीट कलेक्शन? इट्स गॉर्जियस. आई नो इट्स वेरी प्रिटी, द कलर इज वेरी प्रिटी. सो अगर आप लोगों ने मेरा एक व्लॉग नहीं देखा वेयर इन आई शेयर्ड विद यू गाइज हाउ आई स्टार्टेड शिकासा एंड एवरीथिंग, सो उसमें ना मैंने एक मिंट ग्रीन कलर का डमी प्रोटोटाइप दिखाया था आपको प्लीट ऑफ फ्लीट बैग का, कि मतलब मैन्युफैक्चरर ने हमको वो मिंट ग्रीन कलर में बना के दिखाया है डमी के बैग आपका कुछ ऐसा लगेगा, बट इट वाज नॉट द कलर वी फाइनलाइज. इट्स जस्ट दैट उन्होंने एक रैंडम कलर उठा के उसमें हमें डमी बना के दिखा दी, बट यू गाइज सीम टू रियली रियली लाइक दैट कलर. एंड आई रिमेंबर 40-50 लोगों ने वो कॉमेंट लाइक भी किया हुआ था जब किसी ने बोला था कि मिंट ग्रीन भी लॉन्च करो. बट आई एम एक्चुअली थोड़ा सा स्केप्टिकल बिकॉज अगेन इट्स अ पेस्टल कलर एंड इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. तो आई एम स्टिल नॉट श्योर कि इफ वी शुड लॉन्च दैट कलर इन द फ्यूचर और नॉट. एंड इफ यू वांट टू बाय दैट कलर देन लेट मी नो एंड maybe we can consider launching that color in the future. Really wanted to ask what will be the next product you will launch. The similar one is, when are you going to launch your next product? So अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है and looking at the current COVID situation in our country, हम लोगों ने अभी पोस्टपोन कर दिए हैं हमारे सारे लॉन्चेस. सारे नहीं, मतलब जो भी हम 2-3 लॉन्चेस सोच रहे थे आगे करने की, वो अभी हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिए बिकॉज टाइम ऐसा है कि इट्स नॉट सेफ फॉर अस ऑल्सो टू गो एंड मीट द मैन्युफैक्चरर्स. और क्योंकि लॉकडाउन है तो फिर लोग भी उतना शॉपिंग वगैरह नहीं करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली डिस्पैच नहीं हो पाता है लॉकडाउन में. तो फिलहाल वी आर नॉट गोना बी लॉन्चिंग एनीथिंग न्यू, बट आगे जाके वी आर प्लानिंग टू लॉन्च पाउचेज या फिर स्टोरेज बॉक्सेस. मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी कि मतलब कैसा मैं चाहती हूँ वो चीज़, बट आई एम जस्ट गिविंग यू लाइक अ रफ आइडिया कि इन दोनों चीज़ों में से वी आर प्लानिंग टू लॉन्च समथिंग. अगेन आई एम नॉट श्योर, वी माइट लॉन्च ज्वेलरी एज वेल. लाइक आई एम कॉन्स्टेंटली यू नो सर्चिंग फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड स्टफ. तो ये सारे शिकासा के क्वेश्चन थे. नाउ द नेक्स्ट वन इज, थिंकिंग ऑफ ट्राइंग लिव इन रिलेशनशिप. द सिमिलर वन इज, यू एंड अभिषेक आर इन लिव इन रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट इन अ लिव इन रिलेशनशिप, बट आई वुड लव टू try live in relationship with him. Like I've said that earlier as well कि you know it's good कि आप like if you're planning to spend the rest of your life with a person, it is good to you know stay with that person for a couple of weeks and months to actually experience कि उस इंसान के साथ रहना कैसा है. In this city it's not possible, but in the near future maybe when he would have to move out for career, for work to some other city, I can maybe join him and we can stay together because मेरा काम ऐसा है that I can actually work from any
anywhere, you know, from any part of India I can work. So yeah, I'm very happy and lucky in this case. The next one is not a question. So this person has actually asked me to share my childhood picture. So I'm just gonna insert my childhood picture over here. And मेरे हमेशा ना वो fringes थे बचपन में, fringes ही कहते हैं ना उसे, या fringes ही कहते हैं. So मैं हमेशा like मेरे बचपन में वो fringes थे, तो आप देख सकते हो मेरी फोटो यहाँ पे. The next one is, can you tell why did you close Shivani Taneja closet? Like the pieces which are sold are so pretty plus affordable. So ये I think बाबा आदम के जमाने की बात है कि I used to own my own store on Instagram where I used to sell my clothes, जो कि मतलब एकदम न्यू कंडीशन में होते थे. हार्डली मैं 1 या 2 बार उन कपड़ों को पहनती थी एंड फिर मैं अपने क्लोजेट पे सेल कर देती थी एंड काफी कपड़े लाइक सोल्ड आउट हो चुके थे. एंड दिस इज एक्चुअली एन इंस्टाग्राम पेज, शिवानी तनेजा क्लोजेट. अगर आप सर्च करोगे आपको अभी भी दिखेगा वो पेज. सो यू कैन से कि वो मेरा थ्रिफ्ट स्टोर था. थ्रिफ्ट स्टोर्स का ट्रेंड तो वैसे अभी स्टार्ट हुआ है, बट मेरा थ्रिफ्ट स्टोर तो बहुत टाइम पहले से है. एंड उस टाइम एक्चुअली थ्रिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था इंडिया में, विच इज वाई आई डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू दैट. बट स्टिल इफ यू गाइज रियली वांट मी टू स्टार्ट माई थ्रिफ्ट स्टोर अगेन, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली लाइक अ कॉन्ट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन एंड काफी लोगों ने मुझे ये चीज पूछी इस बार. बट अगर आप लोगों में से कोई नहीं भी पूछता ना मुझे ये, तो भी मैं इस वीडियो में आके आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाली थी, बिकॉज इट्स हाई टाइम आई शुड टॉक अबाउट इट. सो द क्वेश्चन इज, हाउ डू यू डील विद शेड थ्रोइंग ट्रेंड इन यूट्यूब? आई सॉ Shreya Jain being pulled into. The similar one is, what do you want to say about Dash bashing you every time for copying the background and all? So Dash मैं बोल रही हूँ because I'm not gonna take names in this video. The similar one is, why is shade thrown on you unnecessarily? What's with the girl shading Shreya and you, blaming you for the background and all of that? So मुझे इन क्वेश्चन से सिमिलर ना काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बट अभी लाइक 3-4 ही मैंने पढ़ के सुनाया है इस वीडियो में. एंड आई डोंट नो फ्रॉम वेयर डू आई बिगिन. लाइक I don't know why creators have to do this. It's so sad. So there's this YouTuber, I'm not gonna name her. I know काफी लोग समझ जाएंगे मेरी बातों से, but still I would request कि मेरे comment section में भी ना कोई उसका नाम मत लेना. If I see any comment with her name, I'm gonna delete that comment right away. So this YouTuber comes and tells in her videos कि people are copying her backdrop, people are copying her content, copying her words. मतलब लास्ट वीडियो में तो लिटरली उसने बोला कि जो मैं वर्ड्स यूज करती हूँ वो भी अब लोग कॉपी कर रहे हैं. एंड ये बात पहले फरवरी में भी हो चुकी है, दैट यू नो शी अपलोडेड दिस व्लॉग एंड हॉल, एंड उसमें भी शी सेड द सेम थिंग कि पीपल आर कॉपिंग माई बैकड्रॉप, विच इज वाई मैं बंजारा मार्केट से जाके थोड़ा और सामान लाइक प्रॉप्स वगैरह लेके आई हूँ. एंड उसी दौरान, इनफैक्ट उससे पहले ही मैं, इशिता और वन्या, हम तीनों भी बंजारा मार्केट गए थे. हमारा प्लान था, इशिता दिल्ली आई हुई थी. आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ होम डेकोर हॉल्स बैक देन, बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज बिल्डिंग माई स्टूडियो. सो जो मैं चीजें खरीदती जा रही थी ना, मैं हर चीज का होम डेकोर हॉल बना देती थी. एंड बंजारा मार्केट से भी, बिकॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, फर्नीचर भी लाई, तो मैंने यू नो हॉल बना दिया. एंड बिकॉज दिस यूट्यूबर मेंशन्ड इन हर वीडियो दैट पीपल आर कॉपिंग हर बैकड्रॉप एंड कंटेंट एंड व्हाट नॉट, सो लोग एक्चुअली आके मुझे बुली करने लग गए. उस यू नो यूट्यूबर के ऑडियंस में से लोग आके ये कहने लग गए कि यू नो व्हाई डू यू कॉपी हर कंटेंट, व्हाई डू यू कॉपी हर बैकग्राउंड, देख देख डैश की कॉपी कैट, देख देख ये तो सिर्फ डैश को ही कॉपी करती रहती है. एंड इट्स सो सैड कि लोग मुझे तभी बुली करते हैं, तभी अटैक करते हैं जब वो यूट्यूबर अपने वीडियो में कहती है कि लोग उसका बैकड्रॉप कॉपी कर रहे हैं या फिर कंटेंट कॉपी कर रहे हैं या फिर वर्ड्स कॉपी कर रहे हैं. अभी मुझे लेटेस्ट ये सुनने को मिला. एंड सर मुझे बुली नहीं करते हैं, देयर इज अ फ्रेंड ऑल्सो, वो बेचारी एक बार मतलब यू नो येलो वॉल पे क्या शूट कर ले, लोग उसे कहने लग जाते हैं कि आप इसके स्टूडियो में शूट कर रहे हो क्या, मतलब उस यूट्यूबर का नाम लेके. सो ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट विद मी, इट्स विद माई फ्रेंड ऑल्सो. एंड मे बी बाकी कितने क्रिएटर्स को जाके उसकी ऑडियंस बुली करती हो, आई हैव नो क्लू. तो मेरे साथ ऐसा काफी बार हो चुका है, दैट शेड हैज बीन थ्रोन ऑन मी एंड आई वाज अवेयर ऑफ दैट, बट आई नेवर टॉक्ड अबाउट दिस ऑन माई चैनल. दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम आई एम गोना टॉक अबाउट दिस. सो या जस्ट अ डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में कहीं आपको लगे कि अब मैं उस पर शेड थ्रो कर रही हूँ, वेल आई एम नॉट गोना डू दैट. इट्स जस्ट दैट कि मैं काफी टाइम से अवेयर थी, बट मैं कभी आके अपने वीडियो पे मैंने ड्रामा क्रिएट नहीं किया या फिर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करी. बट इस बार आई थिंक इट्स हाई टाइम आई शुड स्पीक अबाउट इट एंड इट्स जस्ट माई रिस्पॉन्स. आई एम जस्ट गोना शेयर माई पॉइंट ऑफ व्यू कि what I feel and what I have to say, because as a creator I am also entitled to share my opinions with my audience. Like मैंने ये चीज नोटिस करी है, मुझे वैसे कमेंट्स नहीं आते हैं, बट जैसे ये यूट्यूबर अपना वो बैकग्राउंड टॉपिक रेस कर देती है अपने वीडियो में, वैसे ही मुझे लोग बुली करना स्टार्ट कर देते हैं. ऑब्वियसली मुझे ये चीज काफी टाइम से बॉदर कर रही थी, मैंने उससे कभी बात नहीं करी थी, बट फाइनली मैंने सोचा बंजारा मार्केट वीडियो के बाद कि इट्स हाई टाइम आई शुड टेल हर, आई शुड मेक हर अवेयर कि जब वो अपना बैकग्राउंड टॉपिक रेस करती है अपनी वीडियो में तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस
कॉन्सिक्वेंसेज मुझे क्या झेलने पड़ते हैं, एंड साथ में मेरे फ्रेंड को भी एंड बाकी क्रिएटर्स को भी ऑब्वियसली झेलने पड़ते ही होंगे. ऑब्वियसली आई एम नॉट इन अ टच विद लॉट ऑफ क्रिएटर्स. मेरे इक्के दुक्के ही फ्रेंड है यूट्यूब पे. एंड इन अ रीसेंट वीडियो शी इवन टोल्ड कि देयर इज अ यूट्यूबर हु confronted her and she was taken aback, but she still treated that YouTuber with utmost respect. Well, I was that YouTuber and I don't think we can call it confronting, क्योंकि मैंने एक आर्गुमेंटेटिव वे में उनको टेक्स्ट नहीं किया था, उनको डीएम नहीं किया था इंस्टाग्राम पे. इट्स जस्ट दैट कि मुझे क्या चीज बॉदर कर रही है. आई जस्ट शेयर्ड माई thing with her, like my point of view with her. I just felt like that I should make her aware कि as a creator अगर आप अपने चैनल पे आके कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, because obviously you're entitled to share your opinions, but still आपकी वही opinions आपकी ऑडियंस को एक नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर सकते हैं. जब भी वो ये टॉपिक रेज करती है that people copy my backgrounds but it does not bother me anymore, it doesn't bug me anymore. As a creator I'm just sharing my point of view that if something is not bothering you anymore, then why are you even talking about it in the first place? And even if you're doing that, why are you covering it up by saying that it doesn't bother you anymore? And I feel अगर आपको किसी भी इंसान से कोई इश्यूज है या कुछ भी है ना, आप हमेशा उस बात का बतंगड़ बनाने से बेटर है कि आप उस इंसान से जाके पहले खुद बात करो पर्सनली. सिमिलरली अगर मैं किसी चीज से बॉदर हो रही थी, मुझे किसी चीज से इश्यूज थे, तो मैंने डायरेक्ट उस क्रिएटर से जाके बात करी कि देखो जब आप अपने वीडियोज में जाके बोलते हो कि लोग आपका बैकग्राउंड कॉपी करते हैं, सो दिस इज व्हाट आई हैव टू फेस. आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी ड्रामा ऑन माय चैनल, व्हिच इज व्हाई मैंने उसको पर्सनली टेक्स्ट किया एंड शी वाज वेरी स्वीट एट दैट टाइम. शी अंडरस्टूड एंड शी टोल्ड मी दैट शी वाज नॉट अवेयर ऑफ सच थिंग्स. मैंने उनको बताया कि आपने भले ही अपने वीडियो में जाके बोल दिया कि किसी को जाके बुली मत करना, बट पीपल आर एक्चुअली बुलिंग अदर क्रिएटर्स एंड दैट वाज आई थिंक अ स्वीट कॉन्वर्सेशन एज पर मी. एंड आई डोंट थिंक कि उसको हम कन्फ्रंटिंग का नाम दे सकते हैं, बिकॉज मैंने कुछ भी बहसबाजी वाला टोन में या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव वे में नहीं बोला, लाइक आई सेड. तो ये बात तो फरवरी की है एंड फरवरी के बाद 2 महीने हो गए, मुझे ऐसा कोई कॉमेंट नहीं आया था. लिटरली कॉमेंट्स आने बंद हो गए थे कॉपी कैट वाले. एंड नाउ अगेन दिस यूट्यूबर अपलोडेड दिस वीडियो, Q&A वीडियो. अभी फिर से लोगों के बुली कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं एंड इट्स जस्ट सो सैड, क्योंकि आई मेड श्योर दैट शी इज अवेयर कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी ऑडियंस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है एंड देन दे कम एंड बुली अदर क्रिएटर्स. बट स्टिल शी रेज दिस टॉपिक अगेन. उसमें भी आई एम अग्रीइंग कि शी टोल्ड के कि किसी को जाके बुली मत करना एंड ऑल ऑफ दैट. बट लेट्स ऑल अग्री, इतनी कोई आगेकारी ऑडियंस नहीं होती है कि अगर आप बोल दो कि जाके बुली मत करना तो इसका मतलब लोग नहीं करेंगे. कुछ लोग ऐसे होते हैं सरफिरे जो जाके जस्ट स्ट्रेट अवे बुली कर देते हैं. एंड जब दैट यूट्यूबर अपलोडेड दैट वीडियो, मैंने वो वीडियो देखी, मैंने निग्लेक्ट कर दिया, बिकॉज समवेयर इन द बैक ऑफ माई माइंड आई वाज लाइक इट्स फाइन इवन इफ शी स्टिल वांट्स टू टॉक अबाउट इट, इट्स फाइन, ऑफ कोर्स इट्स हर चैनल. बट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मुझे अगेन ये जो बुली वाले कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए ना, ट्रस्ट मी गाइज, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग 1 बुलिंग कमेंट या 10-100 बुलिंग कमेंट्स, क्योंकि लोग आते हैं कुछ भी बोलते हैं फिर चले जाते हैं. ऐसे हेट कमेंट्स को लिटरली मैं देखती तक नहीं हूँ, देखती हूँ तो डिलीट कर देती हूँ. बट क्या चीज मुझे पर्सनली बॉदर करती है ना, कि वो कमेंट्स तभी क्यों आते हैं जब वो यूट्यूबर अपने चैनल पे बैकग्राउंड कॉपिंग की एंड कंटेंट कॉपिंग की बातें करती हैं. आई ट्रूली फील कि आप एक तरफ ऐसी बातें करते हो, विमेन सपोर्ट विमेन, विमेन एम्पावरमेंट, गर्ल सपोर्ट गर्ल्स, मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस, बट ऑन द अदर हैंड यू आर योरसेल्फ थ्रोइंग शेड ऑन फेलो क्रिएटर्स एंड यू आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग समवन एल्सेज मेंटल पीस. कोई इंसान शांति से सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस कर रहा है, बट स्टिल आप आउट ऑफ नो रीजन आप उस पर शेड थ्रो कर रहे हो अननेसेसरीली. So that's wrong and that's pretty sad that big creators now have to do all these things. The other day I was actually watching Shreya Diki's stories in which she said कि if someone's bashing you for no reason na, it means they actually want to portray themselves as a better, as a real, as an honest person in front of her audience. And I think कि let the audience decide. मतलब अगर कोई आपको as a creator देख रहा है तो इतना लाइक हम बच्चे तो है नहीं 10 साल के मतलब हम किसी से भी जैसा कोई हमें इन्फ्लुएंस करेगा हम वैसे हो जाएंगे. ऑफ कोर्स वी हैव आवर ओन ब्रेन्स, तो लोगों की पर्सनालिटी कहीं ना कहीं दिख जाती है. लेट द ऑडियंस डिसाइड दैट इफ यू एक्चुअली true, if you're actually real, just don't portray yourself as a better person by throwing shade on other creators. And if you've been following me since a long time, आप लोगों को पता होगा कि जब से मैंने अपना स्टूडियो बनाया है, मैं आप लोगों को अभी तक 5 to 6 डिफरेंट बैकड्रॉप सर्व कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, ताकि जब भी आप लोग मेरा चैनल खोलो आप पक ना जाओ एक ही टाइप का बैकड्रॉप देख देख के. एंड जब भी आप मेरी वीडियो पे क्लिक करो ना, आपको हर वीडियो में डिफरेंट बैकड्रॉप देखने को मिले. एंड दिस वॉज ऑनेस्टली अ ड्रीम कि मतलब मेरे पास बहुत डिफरेंट तरह के बैकड्रॉप्स हो, विच इज
इज वाई मैंने अपना स्टूडियो बनाया है इतना पैसा और इतनी मेहनत लगा के। एंड इवन इफ जब मेरे पास मेरा स्टूडियो नहीं भी था ना, जब मेरे पास सिर्फ 6 फीट जगह होती थी बैठ के वीडियोस बनाने के लिए, आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज, तो भी मैं हमेशा अपने बैकड्रॉप के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। लाइक यू गाइज रियली अप्रिशिएट मी कि मतलब दिवाली के टाइम पे दिवाली वीडियोस बनाने के लिए मैं एक डिफरेंट बैकड्रॉप लेके आई, गेंदा फूल वगैरह लगा के एंड दियाज वगैरह रख के, दिया लाइट्स एंड ऑल। एंड क्रिसमस टाइम पे भी मैंने जितनी वीडियोस फिल्म करी थी ना, मैंने क्रिसमस ट्री रख ली थी अपने बैकड्रॉप में। मैं स्पेशली चांदनी चौक से जाके क्रिसमस ट्री खरीद के आई थी कि मुझे अपने बैकड्रॉप में रखनी है क्योंकि क्रिसमस टाइम है। सो मैं हमेशा एक्सपेरिमेंटल रही हूँ, चाहे मेरे पास 6 फीट जगह हो या चाहे मेरे पास 2 कमरों का स्टूडियो क्यों ना हो। बट जब भी उनके ऑडियंस में से कुछ लोग आके कहते हैं कॉपी कर रहे हो कॉपी कर रहे हो, आई फील कि वो लोग अपनी रिसर्च पूरी नहीं करते हैं, बिकॉज माई ऑडियंस ऑलवेज अप्रिशिएट मी फॉर माई बैकड्रॉप्स। एंड जब मैं चाहे दिवाली का टाइम हो गया या क्रिसमस का टाइम हो गया, लोग इतना अप्रिशिएट करते थे कि शिवानी यू सो क्रिएटिव, आप फेस्टिवल्स के हिसाब से बैकड्रॉप लेके आते हो एंड यू सो क्रिएटिव एंड स्टफ। सो मुझे काफी खुशी मिलती थी। लेकिन दिस यूट्यूबर जब वो अपने वीडियो में बात करती है तब उनकी ऑडियंस मुझे बुली करना स्टार्ट कर देती है, एंड इट जस्ट ब्रेक्स माई हार्ट। एंड व्हाट्स इवन मोर शॉकिंग इज दैट दिस यूट्यूबर टेल्स इन हर वीडियोस दैट शी hates the word copy, but she herself uses the word like copycat in her video title. I mean, hypocrisy becomes pretty evident in this case. It's very convenient to use words like inspired when it comes to you and when it comes to your own channel name, because this YouTuber tells that her channel name is actually inspired by a well-known fashion blogger. So it's very easy to use this word inspired, but when it comes to others are copycats. And I'm not sure कि कभी किसी creator ने इस बारे में पहले बात करी है या नहीं, कि कभी भी जैसे हम हॉल्स वगैरह भी करते हैं तो यार ऐसे कितनी चीजें सेम हो जाती हैं। जैसे मैं Amazon हॉल्स वगैरह देखती हूँ, कितने लोगों को मैं देखती हूँ कि जिन्होंने मेरे जैसे कपड़े लिए होते हैं, बट इट डजंट मीन दैट दे आर कॉपिंग मी यार। ऑब्वियसली अगर आप सेम प्लेटफॉर्म से शॉप कर रहे हो तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि अगर कोई चीज आपको पसंद आ गई उस पर्टिकुलर ऑनलाइन वेबसाइट पे तो किसी और को भी पसंद आ सकती है, कोई और भी फिर अपने हॉल में खरीद के वो चीज दिखा सकता है। आई एक्चुअली वांट टू टेल यू वन मोर थिंग। सो इस बार क्योंकि दोबारा से मुझे वो बुली कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए उसकी वीडियो के बाद, सो आई रीच्ड आउट टू हर अगेन एंड आई टोल्ड हर द सेम थिंग दैट यू अगेन टॉक्ड अबाउट पीपल कॉपिंग योर बैकड्रॉप। एंड फिर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा जिस इंसान ने मुझे बोला था कि डू यू चीट डैश, एंड देन यू एक्सपेक्ट योर ऑडियंस नॉट टू अटैक अदर क्रिएटर्स। आई मीन आई लिटरली टोल्ड हर कि आई स्टॉप्ड गेटिंग कॉपी कमेंट्स, बट आफ्टर योर वीडियो आई अगेन स्टार्टेड गेटिंग कॉपी कमेंट्स। एंड मैंने उसको बताया कि आई डोंट इवन हैव अ सिमिलर बैकड्रॉप और कंटेंट एज योर्स। एंड मैंने सिंपली ये चीज लिखी एंड में कि इफ यू डोंट वांट पीपल टू अटैक अदर क्रिएटर्स, इट्स गुड इफ यू डू नॉट रेज दिस टॉपिक अगेन एंड अगेन। एंड आई वाज ऑनेस्टली शॉक्ड बाय हर एरोगेंट रिस्पॉन्स। सो दिस इज व्हाट शी सेड टू मी, एंड ट्रस्ट मी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ अ रिप्लाई। मैं थोड़ा सा शॉक हुई कि मतलब यार मतलब ऐसा रूप भी है इनका। ऑन वन साइड यू आर सेइंग स्टॉप टेलिंग मी व्हाट टू डू, एंड ऑन द अदर साइड यू आर एक्चुअली टेलिंग मी टू फोकस ऑन माई कंटेंट। तो यार आप फिर अपनी राय भी अपने पास ही रखो, आई फील। एंड उसके बाद भी मुझे जो बोलना था मैंने बोला, बट शी डिड नॉट सी माई रिप्लाईज एंड आई सॉ दैट शी रिमूव्ड मी एज हर फॉलोअर, विच इज आई फील वी आर नॉट 10-year-old यार। मतलब आई डू नॉट एक्सपेक्ट this person to act like a 10-year-old. And कुछ दिन बाद she actually blocked me also. Like at this point of time she has literally blocked me, and मुझे actually में ना काफी हंसी आई देख के when she blocked me, because who does that? Like who does that, especially to a person who has been your follower, who has been a subscriber since a long time, and that person is just sharing her opinions as a fellow creator and as a part of audience. So I was equally shocked. Like she was taken aback now, so even this time even I am taken aback. And to be honest, this is like heights of hypocrisy कि at first you're telling me that you're entitled to share your opinions, कि मतलब अगर तुम्हें लग रहा है लोग तुम्हारा बैकड्रॉप कॉपी कर रहे हैं तो तुम शेयर कर सकते हो अपने वीडियो में। But if Shreya Jain, if a fellow creator is actually sharing her genuine opinion about a brand, she is giving her honest review, then you are actually throwing shade on her. So उनको भी उनका point of view अपनी audience के साथ share करने दो ना, because she is I think equally entitled. Just because I am working with Mamaearth doesn't mean कि मैं उन creators पे shade throw करूंगी कि नहीं वो तो बस उनके तो reviews में झोल है कोई, and वो तो कुछ ज्यादा हद से ज्यादा बुराई करते हैं, but आप लोग अपना mind use करो and stuff like that. भाई उनको उनका opinion share करने दो, आप अपना opinion share करो, let the audience decide कि उन्हें किस पे trust करना है, and वो action में वो brand try करनी
है या नहीं करनी. She talks about people bashing Mamaearth and including them in their thumbnails, video titles for views and stuff. I think she has done exactly the same. उन्होंने भी यही सब चीजें करी है, कॉपी कैट जैसा वर्ड यूज करके कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, क्योंकि लोग तो ऑब्वियसली क्लिक करेंगे ही ना. मतलब इसमें तो कुछ मिर्च मसाला मिल जाएगा इस वीडियो में, तो चलो खोल के देखते हैं कि कौन है कॉपी कैट एंड स्टफ लाइक दैट. सो ये सारी ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, एंड आई थिंक everyone has done that. It's not just with her. I feel everyone uses clickbaity thumbnails and clickbaity titles and whatnot to attract people, to get more views and get more engagement. Everyone has done that. बट अभी जो ये रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, कभी बैशिंग कल्चर स्टार्ट हो जाता है, अब शेड थ्रोइंग बिजनेस स्टार्ट हो चुका है यूट्यूब पे. इट्स वेरी वेरी रॉन्ग. आई रियली फील दैट इट्स जस्ट सैड टू सी पीपल डूइंग दिस. लाइक व्हाई डू पीपल हैव टू डू दिस ऑन यूट्यूब? मतलब आप अपने चैनल पे, अपने कंटेंट पे फोकस करो, ना कि शेड थ्रो करके या फिर किसी को बैश करके कंट्रोवर्सी या ड्रामा क्रिएट करो अपने चैनल पे. इन अ वर्ल्ड वेयर यू कैन एक्चुअली स्प्रेड लव, व्हाई आर यू स्प्रेडिंग हेट फॉर नो रीजन? एंड आई कंप्लीटली अग्री टू व्हाट श्रेयादी सेड इन वन ऑफ हर स्टोरीज द अदर डे, दैट व्हेन यू कैन एक्चुअली बिल्ड समवन अप, व्हाई टू टीयर देम डाउन? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शी सेड टू मी व्हेन आई डीएमड हर कि मेरे साथ भी ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है काफी टाइम से, बिकॉज उनको भी उन पे भी शेड थ्रो की गई है उसी सेम यूट्यूबर से. तो इस क्वेश्चन का आंसर काफी लंबा हो गया है, आई अग्री. बट द थिंग इज कि मैं इस टॉपिक के बारे में खुद बात करना चाहती थी, बिकॉज आई कैन नॉट गेट बुलीड फॉर नो रीजन. और अभी भी मुझे कोई ग्रजेस नहीं है यार उस इंसान के साथ, बट इट्स जस्ट दैट आई डोंट लाइक हर फॉर हर एक्शंस. अनदर वन इज एज एन इन्फ्लुएंसर, जब आपकी कोई भी चीज कोई कॉपी करता है तो आप भी बड़े यूट्यूबर्स की तरह बवाल क्यों नहीं करती? तो ऐसा हुआ है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे बुली कॉमेंट्स आते हैं, मैंने भी काफी बार ऐसी चीजें नोटिस करी है कि मुझसे सिमिलर है. कभी कभी आप नोटिस कर लेते हो, बट मैंने कभी बवाल क्रिएट नहीं करा, बिकॉज मुझे अननेसेसरी ड्रामा करना नहीं पसंद है अपने चैनल पे. और आपने कभी मुझे ड्रामा करते हुए नहीं देखा होगा अपने चैनल पे. मैं हमेशा अपने कंटेंट से ही मतलब रखती हूँ, और मैं हमेशा जस्ट अपने चैनल पे ही फोकस करती हूँ. मुझे ये नहीं है कि मुझे इस यूट्यूबर पे शेड थ्रो करना है, इस यूट्यूबर को बैश करना है, कुछ भी है. सो या आई मीन मैं भी कर सकती थी. अभी रिसेंटली में ही ना एक यूट्यूबर है, वेरी न्यू यूट्यूबर इट सीम्स लाइक, एंड ऑल्सो हैपेंस टू बी वन ऑफ आवर शिकासा कस्टमर्स. सो उसका सेम ये बैकड्रॉप था, मतलब सेम with that canopy and साइड में कुछ कुछ रखा हुआ है and all that. So the thing is कि मैं भी बवाल कर सकती थी कि इस यूट्यूबर ने मेरा बैकड्रॉप कॉपी कर लिया and all that, बट मैंने नहीं किया यार, क्योंकि मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी कि मतलब मैंने आपको ये सेटअप करना दिखाया था एक वीडियो में कि हाउ यू कैन सेटअप दिस कोजी कॉर्नर इन योर रूम अंडर अ बजट. तो अगर एक्चुअल में कोई इंसान मुझसे इंस्पायर होके एक ऐसा कॉर्नर सेटअप कर रहा है अपने रूम में, तो मुझे तो खुशी होनी चाहिए यार कि वो इंसान मुझसे इंस्पायर हो रहा है. तो मैंने कोई बवाल क्रिएट नहीं करा, क्योंकि यार फिर मैं किस बात की इन्फ्लुएंसर हुई जब अगर लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं तो मैं खुश होने के बजाय उनको कॉपी कैट बोलूं या फिर बोलूं कि लोग कॉपी करते हैं मुझे एंड स्टफ लाइक दैट. तो मैंने देखा कि वो एक यूट्यूबर है एंड वो उसी सेम कोजी कॉर्नर को एज अ बैकड्रॉप ही यूज कर रही है अपनी वीडियो में. सो आई वाज लाइक ओके फाइन, आई मीन लेट हर डू इट, इट्स ओके. एंड नाउ आई एम एड्रेसिंग ऑल दिस थिंग्स क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा है कि मैं बवाल क्यों नहीं करती हूँ, क्योंकि पसंद नहीं यार. अपने काम से काम रखो, अपने कंटेंट से मतलब रखो. किसी ने मुझसे पूछा योर मंथली इनकम, तो मंथली इनकम यार इट डिपेंड्स कि मतलब उस पर्टिकुलर मंथ में वीडियोस कैसी परफॉर्म कर रही हैं. मैं स्पॉन्सरशिप्स को अपनी कोई स्टेबल इनकम नहीं मानती हूँ यार, बिकॉज एक मंथ में आपके पास एक भी स्पॉन्सरशिप आ जाए वही बड़ी बात है, और एक मंथ में आपके पास 6-7 भी आ जाती हैं. सो मैं हमेशा एडसेंस को ही अपना एक स्टेबल इनकम मान के चलती हूँ, उसी को मैं अपना एक मेन सोर्स ऑफ इनकम मानती हूँ. कभी वीडियोस अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं तो ज्यादा इनकम आती है, कभी वीडियोस ब्लैक परफॉर्म करती हैं तो उतनी इनकम नहीं आती है. सो यूजुअली मेरी लाइक आ जाती है $250 to $300 के बीच में. लेकिन जैसे कभी अच्छा परफॉर्म कर जाए कोई वीडियो, 50-60 हज़ार व्यूज क्रॉस कर जाए, सो इन दिस केस मुझे आराम से लाइक $350-400 तक बच जाते हैं. यूट्यूबर whom you liked on camera but was very different in real life. So I've met Shreya Jain 4 times, yeah, and then I've met Komal Narang from My Happiness, I've met Kritika Khurana, That Boho Girl, I've met Sejal Kumar, and चारों से मिलके ना मतलब ये लोग जैसे है ना, I've met Ishita also by the way, but she's a good friend. So basically मैं जितने भी यूट्यूबर्स से अभी तक मिली हूँ ना गाइज, वो जैसे ऑन कैमरा है ना वो वैसे ही है रियल लाइफ में. मतलब स्पेशली श्रेया दी और कृतिका दी से मिलके तो ऐसा लगा कि मतलब हम कितने टाइम से जानते हैं एक दूसरे को. द नेक्स्ट वन इज, डू यू फील दैट यूट्यूब इंडस्ट्री इज गेटिंग टॉक्सिक डे बाय डे? बाय द वे गाइज मैंने अब यूट्यूब के क्वेश्चंस लेने स्टार्ट कर दिए हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस मैं नहीं ले रही हूँ इस बार. आई फील कि यूट्यूब इंडस्ट्री टॉक्सिक हो गई है, स्पेशली विद ऑल दीज
ट्रेंड्स जो मैंने अभी बात करी थी, लाइक बैशिंग ट्रेंड, शेड थ्रोइंग बिजनेस एंड ऑल ऑफ दैट, सो हो गई ये टॉक्सिक कहीं ना कहीं। अभी ऐसा लगता है मुझे कि ना यूट्यूबर्स एक दूसरे को सपोर्ट कम करते हैं, लेकिन दूसरे के कंधे पे पैर रख के चढ़ना चाहते हैं, खुद को एज अ बेटर, एज अ रियल पर्सन पोर्ट्रे करना चाहते हैं। सो यूट्यूब इंडस्ट्री तो हो ही रही है लाइक टॉक्सिक एज पर माई ओपिनियन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ गिवन अ चांस टू कोलैब विद हेली एंड मृदुल शर्मा, वुड यू लाइक टू कोलैब विद देम? आई थिंक आई वुड लव टू कोलैब विद बोथ ऑफ देम, बिकॉज दोनों का ही कंटेंट मुझे बहुत पसंद है एंड दोनों ही बहुत क्रिएटिव है। स्पेशली हेली के व्लॉग्स में आई सी हर पेंटिंग स्टूडियो के वॉल्स इतने क्रिएटिव वे में, वो अपना लाइक दोनों ही बहुत क्रिएटिव है यार। एंड मृदुल के एस्थेटिक्स तो मतलब नेक्स्ट लेवल। तो आई वुड लव टू कोलैब विद बोथ ऑफ देम, एंड देन दोनों मेरे एज ग्रुप के ही हैं। डू यू लाइक टू मीट और कोलैब विद यशिता राय? आई थिंक आई वुड लव टू कोलैब विद हर। She is like a pastel queen and moreover she is a sweetheart, मतलब उसके वीडियोस में दिख जाता है her down to earth nature. So मैंने अभी like कुछ टाइम पहले I sent her a PR as well. शिकासा का बैग मैंने भेजा था and she very kindly posted a story. I mean I really want to say a thank you to her for supporting my business and for supporting a fellow creator. So yeah, मुझे सबके साथ ही कोलैब करने में like I am तो पूरा interested. The next one is, total orders till date you got on Shikasa and when are you coming up with tote bags I really wanna buy? So the total orders on Shikasa, I think it's around 85. I am not sure because I'm not the one who takes orders and stuff. कभी कभी लेती हूँ मैं orders, but mostly मैं नहीं लेती orders. So जब तक like लास्ट मैंने चेक किया था तब तक कुछ 85-86 ऑर्डर्स हमको आ चुके हैं टोटल अभी तक। एंड टोट बैग्स का आई एम नॉट श्योर बिकॉज टोट बैग फिर इतना बड़ा होता है एंड वो आराम से उसकी कॉस्ट 1000 से पार चली जाएगी। एंड अभी स्टार्टिंग में वी रियली वांट टू लॉन्च सम अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स अंडर 1000 रुपीज। द नेक्स्ट वन इज एक्चुअली अ रैपिड फायर, जल्दी आंसर करूंगी, ठीक है? मृदुल और मानसी, आई थिंक मृदुल, बिकॉज मृदुल और मानसी दोनों का ही कंटेंट मुझे इक्वली पसंद है, बट एक नंबर फालतू मैं मृदुल को दूंगी जस्ट फॉर हर एस्थेटिक्स। चॉकलेट और कैंडी, चॉकलेट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, पिज्जा बर्गर पिज्जा। So yeah, that was a quick rapid fire round. The next question is actually, मतलब मैं इसका आंसर तो दे चुकी हूँ guys, लेकिन still I really want to read it out loud in front of you on my channel. So it's from Medha Sharma. Thank you for this comment. All about the current shade throwing on other creators. Your thoughts? Question mark. We have seen this so much lately. It's a toxic trend for viewers as well. So as a viewer, मतलब she is expressing her thoughts. Where at one place a creator says lift others, women support women, etc. and then bashing one after the other creator for their honest views. It is also funny how they bash other creators, जबकि वो लोग तो कभी उन्हें bash नहीं करते या पिन पॉइंट नहीं करते. Is this their support for fellow female creators? I think it's high time we as viewers too should open our eyes to such politics. So thank you so much Medha for this comment, and as an audience also I guess कि आप लोगों को बिना पूरी प्रॉपर रिसर्च करके ही दोनों तरफ का सोचना चाहिए, किसी एक इंसान से इन्फ्लुएंस होने की बजाय. एंड नाउ वी हैव कम टू द लास्ट क्वेश्चन एंड इट इज which camera you use to shoot your videos. So I've been using this Canon G7X Mark II camera since 2018 का अक्टूबर से, मतलब ऑलमोस्ट 3 years हो गए मैं यही कैमरा यूज कर रही हूँ, चाहे मुझे व्लॉग्स बनाने हो. वैसे व्लॉग्स में कभी कभी अपने आईफोन से भी शूट कर लेती हूँ अब, क्योंकि आई हैव एन आईफोन. बट हाँ, मैं व्लॉग्स और अपना मेन वीडियोज एंड जो भी मुझे करना होता है मैं सब इसी कैमरा से करती हूँ. एंड विद दैट आई एम फाइनली डन विद द सेकंड एपिसोड ऑफ #raw&real. I really hope you guys enjoyed watching this episode, and that's all that I wanted to share with you guys. That was my raw, real, unfiltered version. So yeah, that's it. If you like this video, then please make sure you give it a big thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. In case you guys would like to connect with me on my social medias, I would surely leave all the links for you in the description box below as always. And please go ahead and show some love and support to my baby brand Shikasa. I'm gonna leave its Instagram handle in the description box as well. And yes, I shall see you next time. Till then, you all please stay safe, stay positive, and be kind to yourself and others. Bye bye.